Good morning, dear students, and welcome back to our next class. In this class, we will learn in the continuation to the chapter we were learning. In this topic, we will learn some adjectives. Means we will learn how to express someone's characterization. कि कोई person कैसा है, उसका behavior, nature कैसा है. How would we express that? So before that, we will learn some basic words. Words like how do we call nice, friendly, good, इस तरह के words, adjectives. So nice is called as nett in German language, N-E-T-T, nett, or in Deutsch N-A-T-T, nett. Funny is lustig, L-U-S-T-I-G, lustig. Look here, lustig is ending at G, but the sound Z is producing is sh, lustig, not lustig, so lustig. Then friendly, friendly means freundlich, F-R-E-U-N-D-L-I-C-H, freundlich. Then sporty, sporty means जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हो, खेलने वाला इंसान हो, दैट इज स्पोर्टलिश, S-P-O-R-T-L-I-C-H, स्पोर्टलिश. Then good, good is good, G-U-T. Bad is schlecht, S-C-H-L-E-C-H-T, schlecht. Then lazy, lazy is foul, F-A-U-L, foul. Strict is strange, S-T-R-E-N-G, strange. Dumb is doom, D-U-M-M, doom. Thin or skinny is dun, dun. And fat is dick, D-I-C-K, dick means fat. Whenever we use these words in the sentences, the first letter of these adjectives is always small. However, यहाँ पे मैंने first letters को capital रखा है, but जब भी इनको हम sentence में use करेंगे, the first letters will be small. Okay? Now the question is, how would we ask about someone's characterization? हम कैसे पूछेंगे कि कोई इंसान कैसा है, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, एंड हाउ वुड वी आंसर टू दैट क्वेश्चन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक. सो द क्वेश्चन वर्ड वी यूज इज वी. जो क्वेश्चन पूछने के लिए हम वर्ड का यूज करेंगे दैट इज वी, दैट इज W-I-E, वे, ई ए, वी. वी मीन्स हाउ, एंड द वर्ब वी आर गोइंग टू यूज इज जाइन, S-E-I-N, जाइन. अगेन हमने जाइन पहले भी डिस्कस किया है, विच मीन्स टू बी. Sentence formation for the question will be, सबसे पहले we means question word, then the verb sein which is conjugated according to the subject, and then the subject. This is the question. And how do we answer this question? सबसे पहले subject या personal pronoun जो भी हमने sentence में use करना है, then at the second position verb which is conjugated according to the subject, then adjective, और उसके बाद object अगर कोई है sentence में तो. So let us discuss some sentences on the given topic we are discussing. Let's say कि हम कहना चाहते हैं रोहन कैसा है, how is Rohan. So question will be wie ist Rohan. So the answer will be Rohan ist sehr toll. Toll is used in the sense of good. So Rohan ist sehr toll. Sehr is very. टॉल मैंने गुड, अच्छा, है ना, इस तरह के वर्ड्स में. एग्जैक्ट मीनिंग टॉल का अच्छा नहीं है, लेकिन उस सेंस में हम यूज़ करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में भी वी इज दाइन फादर. इफ़ यू वांट टू आस्क कि हाउ इज़ योर फादर, दाइन इज योर फादर मीन्स फादर. सो वी इज दाइन फादर, माइन फादर इज लुस्टिश, माई फादर इज फनी. सो लुस्टिश इज फनी, एंड सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज father. Wie ist deine Freundin? How is your friend? Meine Freundin ist nett. My friend is nice. Wie ist deine Stadt? How is your city? Meine Stadt ist sehr schön. My city is very beautiful. Sehr means very again. So now if we want to ask someone's age, means
हमें, क्योंकि एज भी एक तरह की करेक्टराइजेशन है कि वो इंसान कैसा है, किस तरह का है, तो उसमें एज भी इंक्लूड होती है। मान लो ये पूछा जाए उस सेंस में, तो एज पूछना हम कैसे पूछेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे वो अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले वी नीड टू रिवाइज और लर्न द काउंटिंग फ्रॉम 20 to 100. So 20 is Swanzig. ZWAZIG, Swanzig. 21 is Einundzwanzig. EIN, Ein, UND, und, ZWANZIG, Swanzig. 22 is 22. 23 is 23. 24 is 24. 25 is 25. 26 is 26. Now look, in 26 हमने 26 लिखा और जेक्स की जो स्पेलिंग रहती है दैट इज़ SECHS, तो हमने जेक्स को एज इट इज़ पुट किया बिना किसी चेंज के। आई एम टेलिंग यू दैट हियर, क्योंकि आगे जाके ये 60 और 70 लिखेंगे तब वहाँ पे एक छोटा सा चेंज होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एस के नीचे मैंने मार्क किया है, जेक्स में एस के नीचे मार्क किया है, और सेम 27 में ZWANZIG EN के नीचे मैंने मार्क किया है। ये किस रीज़न से मार्क किया मैंने वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सो 27 इज़ 27, 28 इज़ 28, 29 is 29. NEUN is pronounced as 9. 29. And 30. D30 is 30. So DREI. Now यहाँ पे हम Z का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो DREI set E. Now the next alphabet जो है उसका मीनिंग अगर हम इंग्लिश में देखें that makes a sense of double S. ओके, then IG. नाउ 31 से लेके 40 तक 31 से लेके 39 तक वो सेम पैटर्न यूज़ होता है जो 21 से 29 तक हमने यूज़ किया। मीन्स आयन उन स्वायन द्रायन ये हम लगाते जाएंगे आगे, और 31 32 33 निकलता जाएगा। देन 40 इज़ 40. द सेम पैटर्न फॉलोज फ्रॉम 41 to 49. देन 50 इज़ 50. एंड 60 इज़ 60. नाउ लुक, जब 26 था हमने लिखा था ZWANZIG, SECHS, है ना, जो मैंने मार्क किया था। यहाँ पे वो S मिसिंग है, यहाँ पे SECHZIG लिखा है, ZWANZIG, नॉट SECHSZIG, नो, यहाँ पे S रिप्लेस हटा दिया मैंने, उसको रिमूव कर दिया हमने। 70 के लिए ZIPZIG, अगेन B के बाद जो EN था वो हमने रिमूव कर दिया, SIBZIG, ZIPZIG। 80 is 80, 90 is 90, and 100 is 100, HUNDERT, 100. We can also call it iron 100. Iron लगाना है तो भी ठीक है, नहीं लगाना that is also okay. Now, how do we ask the questions regarding age? How old are you? We alt bist du. सबसे पहले we जो हमने पहले डिस्कस किया था सेंटेंस फॉर्मेशन में, then alt means old. Bist is the form of sein which is conjugated according to you, means do. Do is informal you. So informal you के do के साथ, informal you के साथ हम जो यूज़ करेंगे that is bist, the form of sein. We alt bist du. How old are you? The answer is ich bin 27 Jahre alt. मैं 27 ईयर्स का हूँ, मैं 27 साल का हूँ। So ich bin 27 Jahre alt. Second, wie alt ist er? How old is he? So er ist 18, he is 18. Wie alt ist deine Mutter? How old is your mother? So उसके लिए हम यूज़ करेंगे meine Mutter ist 45 Jahre alt. मेरी जो माँ है वो 45 ईयर्स ओल्ड है, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे। Wie alt sind sie? लेट्स से कि हम किसी सीनियर पर्सन से, एल्डर पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जी फॉर्मल वाला यूज़ करेंगे, और जी के साथ जो जाइन की फॉर्म आती है दैट इज़ जिंड। सो वी आल्ट जिंड जी, दैट इज़, अब ये जो सेंटेंस है आमने सामने बात हो रही है, ठीक है। सो इश बिन अक्सिस, जो सामने वाले पर्सन का आंसर है दैट इज इश बिन अक्सिस, आई एम 80 ईयर्स ओल्ड। 11 आल्ट लगाना या नहीं लगाना ये हमारी चॉइस है। 80 भी सेम सेंस बनाता है, दैट इज़
वी कैन कॉल इट ich bin axis Jahre alt या फिर ich bin axis, एक ही बात है. Now we will revise the verbs we already learned in the previous lectures. एक दो verbs थी जो हमने पहले डिस्कस की थी, तो हम उन्हें रिवाइज करेंगे ताकि वो चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप ना हो और सेंटेंस यूज़ में प्रॉब्लम ना हो. उनकी कॉन्जुगेशन भी हम साथ के साथ करेंगे. सो द वर्ब्स आर wohnen. Wohnen means to live. WOHNEN wohnen. सो इसकी कॉन्जुगेशन रहेगी ich wohne, du wohnst, RSZ के साथ wohnt, ihr wohnt, sie formal and sie as they wohnen, wir wohnen. Second verb is liegen. Liegen means situated at. अगर हम किसी को लोकेशन बताते हैं, LIEGEN liegen. Ich liege, du liegst, RSZ liegt, ihr liegt, sie formal you and sie they liegen, wir liegen. सो ये वो वर्ब हैं जो हम यूज़ करेंगे साथ में सेंटेंस बनाने में, ताकि जिस सेंटेंसेस में हमें किसी की लोकेशन बतानी है. ओके. वनन मीन्स वो कहाँ रह रहा है, लीगन कोई चीज़ कहाँ पड़ी है. सो आप इन चीज़ों को रिवाइज करें, अच्छे से याद करें. आई होप कि यू आर गेटिंग वट वी आर टीचिंग एंड वट वी आर लर्निंग हियर. कीप लर्निंग. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम जस्ट अ कॉल अवे. यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम. थैंक यू.